گینگسٹر لو ایپیسوڈ 23 رائٹر فائزہ شیخ۔ اگلی صبح روشن تھی۔ المیر کی آنکھ یالے سے پہلے کھلی تھی۔ المیر نے سرخ نگاہیں ارد گرد دوڑائیں تو اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے خمار آلود نگاہیں اپنے سینے پر ٹکائی تھی جہاں یالے المیر کی یعنی بکھری سی اس کے گرد اپنا معصوم سا حصار ڈالے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ گزری رات میں وہ یالے المیر کی روح پر بھی اپنی مہر لگا چکا تھا۔ اپنی شدتوں سے وہ یالے المیر کیانی کو اچھے سے واقف کرا گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ یالے کے پور پور پر اس کے لبوں کا لمس تھا۔ المیر کیانی نے بڑی محبت و چاہت سے اسے خود میں سمیٹا تھا۔ المیر کو رات کی گئی اس کی التجائیں یاد آئی تھی جب وہ اس کی شدتوں پر ڈری سہمی سی رو رہی تھی۔ المیر نے لب دانتوں تلے دبائے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ وہ مطمئن سا تھا یالے کے ساتھ اپنے رشتے کی نئی شروعات اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یالے المیر بال برابر بھی کسی کی وجہ سے اس سے دور جائے، پر قسمت پر کس کا زور تھا۔ المیر نے محبت سے اپنی جن جان کو دیکھتے اس کے پیشانی پر لب رکھے تھے۔ بکھرے حلیے میں اس وقت وہ ایک بار پھر المیر کی آنے کا ایمان ڈگمگانے کے ڈر پر تھی۔ وہ کروٹ کے بل ہوتا نرمی سے اس کے لبوں کو چومتا اپنی داڑھی یالے کے گالوں سے مس کرنے لگا۔ اس کی داڑھی کی چبھن پر یالے نے کسمساتی آنکھیں کھولی تھی، پر خود پر المیر کی آنے کی بے باک نگاہیں محسوس کرتی وہ جھیپ سی گئی۔ جانے المیر، نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو، میرا وصل مبارک ہو یالے۔ المیر کی آنی، میری تو خواہش تھی کہ یہ وصل کی گھڑیاں کبھی ختم نہ ہو، پر تمہاری نازک سی جان پر ترس آ گیا۔ المیر گمبھیر آواز میں بولتا یالے کو حواس باختہ کر گیا۔ ابھی تو وہ رات کی ہی شدتوں سے نہیں سنبھلی تھی کہ وہ پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ المیر، اب اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں میجان سے آپ کی شکایت کروں گی۔ یالے رونے کو تھی، اس کی بے باکیاں یالے کی سانسیں تک روک گئی تھی۔ وہ تو المیر کو کافی شریف انسان سمجھتی تھی، پر گزری رات المیر کی آنی نے اسے اچھے سے بتایا تھا کہ وہ صرف دکھنے میں شریف ہے ورنہ دور دور تک اس کا شرافت سے کوئی تعلق نہیں۔ او میرا چھوٹا سا بیبی رات کی طرح روئے گا؟ کیا بتاؤ گی بی جان کو کہ بی جان آپ کا پوتا میرے پور پور پر اپنا لمس بکھیرتا مجھے پاگل کر گیا ہے؟ المیر اس کی دھمکی پر آئی ونگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ آپ بہت بے شرم ہے المیر، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ یالے کہتی خود پر کمفرٹر کھینچ گئی۔ اس کے وجود پر کپ کپی تاری تھی، دل کی دھڑکنیں پورے روم میں گونج رہی تھیں۔ وہ نازک سی جان المیر کی یعنی کہ جنون خیزیوں پر نڈھال سی ہوئی تھی۔ رات بھر اس ظالم شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے رہائی نہ دی تھی، بلکہ اپنا سحر اس پر بھی طاری کیے المیر کی یعنی یالے کو بھی اپنی شدتوں میں شامل کر چکا تھا۔ بڑی مشکل سے یالے نے صبح کے 4 بجے اس ڈرائنو سے روتے ہوئے آزادی لی تھی، اور صبح اٹھتے ہی جناب کا موڈ پھر سے اسے پاگل کرنے کا تھا۔ جانم بیوی کے معاملے میں المیر کی یعنی پکا بے شرم ہے، اب تو عادت ڈالنی پڑے گی۔ کل رات میرے جنون کا قطرہ بھی تم نے محسوس نہیں کیا یالے المیر۔ میری جنون خیزیاں رات کی طرح گہری ہیں، جن پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ تمہارے لیے مجھے خود کو وارنا منظور ہے، پر یالے کی دوری المیر کیانی کو منظور نہیں۔ المیر کیانی اس کے بکھرے بال شانے سے پرے کرتا محبت سے بولا تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ چاہت ہی مان تھا جسے دیکھ یالے کو اپنا آپ معتبر لگنے لگا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا المیر کیانی اسے محبت میں چاہنے کی انتہا کر دے گا۔ وہ تو موم سی نازک گڑیا تھی انچھوئی جسے المیر کیانی نے مہکایا تھا، ایک گلاب کی طرح۔ یالے اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ المیر کیانی جیسا ہمسفر کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ آپ ہٹ رہے ہیں یا میں چیخ کر روؤں؟ یالے نے اسے لاسٹ وارننگ دی تھی۔ اوکے اوکے میری چھوٹی سی جان کو شاید مجھ سے شرم آ رہی ہے۔ کیا یاد کرو گی نہیں کرتا تنگ؟ المیر اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے میری شرٹ تو دے دو، تم نے تو قبضہ ہی کر لیا ہے۔ المیر شرارت سے گویا ہوا تھا۔ یالے کا چہرہ اس کی معنی خیزی پر تپ اٹھا تھا۔ وہ سر تپاؤں رنگوں میں ڈھلی تھی۔ بہت ہی کوئی بیہودہ جوک تھا المیر، نکلے میرے روم سے۔ یالے بھڑکی تھی اس پر جو کتنی دیر سے اسے زج کیے جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس ڈھیٹ شخص سے کیسے نپٹے۔ اچھا جا رہا ہوں، ساری رات خدمتیں کروائیں اور اب دیکھو کیسے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر رہی ہو۔ المیر لہجے میں سنجیدگی سموئے بولا تھا۔ کون سی خدمتیں ذرا بتائیں؟ ساری رات تو آپ… یالے بولتی ہوئی لال ٹماٹر ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا خود کو المیر کی آنے کی نظروں کے سامنے سے غائب کر دے۔
हाँ हाँ, बताओ क्या किया मैंने तुम्हारे साथ सारी रात, बताओ ना, बोल क्यों नहीं रही? अभी तो पटर पटर बोल रही थी। अलमीर मज़े से उसकी हालत इंजॉय कर रहा था, वरना दिल चाह रहा था उसकी सुर्ख पड़ती रंगत पर कहका लगाए। याले अलमीर की यानी अपनी गुर्बत के रंगों में ढली उसे अच्छी लगी थी। दिल इस नाजुक परी का असीर हुआ था। उसको शर्म और हया से खुद में छुपना वो अच्छे से खुद में महसूस कर रहा था। अलमीर की यानी की ज़िंदगी की नई शुरुआत काफ़ी खूबसूरत हुई थी। याले की मौजूदगी उसे अपना कीमती सरमाया लगी थी। सिकंदर कल्बुलैन को लिए किचन में आया था। उसे शदीद भूख लग रही थी। आ जाओ कल्ब, क्या खाना है मेरी बिल्ली ने? सिकंदर फ्रीजर से एग और दूसरा सामान निकालता कल्बुलैन से इस्तफसार करने लगा। कल्बुलैन इस वक्त ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक, चूड़ीदार पजामे, कंधों पर गोल्डन दुपट्टा डाले सादगी में भी सिकंदर पर कहर बरपा कर गई थी। उसका दिल हमक हमक कर कल्बुलैन के साथ वक्त गुजारने, उसकी शरारतों में उलझकर दुनिया भूल जाने का कर रहा था। वो जितना कल्बुल ऐन के लिए तड़पा था, उसके लिए कल्बुल ऐन के साथ गुजारा लम्हा लम्हा अनमोल था। वो चलते हुए शेल्फ के पास आके खड़ी हुई थी। मुझे कुछ चटपटा सा खाना है जो आप मज़े का बनाते हो। वैसे तो आप खुद कड़वे करेले हैं, बट मुझे करेलों से एलर्जी है। कोई ऐसी डिश बनाएं जो बहुत स्पाइसी हो, बिल्कुल मेरी तरह। कल्बुल ऐन पुरसोच अंदाज में थोड़ी पर उंगली टिकाते अपने जहन में डिश का नक्शा बनाते हुए बोली थी। सिकंदर ने उसकी तफसील सुनकर लब भींच कर मुस्कुराहट रोकी थी। वहीं खुद को करेला कहा जाने पर आंखें छोटी किए उसे घूरा था। अगर मैं करेला हूं तो तुम भी सड़ी हुई भिंडी हो। बताओ, खुद ही बनाओ कुछ, मैं नहीं बना रहा तुम्हारे लिए। सिकंदर जरा खफकी से बोला था। एक तो वो सुबह सुबह उसके लिए अपनी नींद खराब करके आया था, और ऊपर से मोहतरमा के नखरे ही नहीं लिए जा रहे थे। कल्बुलैन ने उसके गुस्सा होने पर जबान दांतों तले दबाई थी। उसे तो अपना मजाक खुद पर भारी पड़ता महसूस हो रहा था। जंगली शेर तो वो पहले ही था, गुर्रा और रहा था। वो मैं बस ऐसे ही कह रही थी, आप नाराज तो ना हो? कल बुलैन बेकरारी से उंगलियां चटखाते हुए बोली थी, अंदाज में शर्मिंदगी सी। वो सिकंदर को खफा करने के हक में बिल्कुल भी नहीं थी, पर वो हो रहा था। वो फिर भी खफा हो रहा था। सिकंदर ने उसकी भीगी बिल्ली जैसी हालत देख अपनी हंसी छुपाने के लिए रुख मोड़ा था। उसकी कल्बुलैन आज भी इतनी ही मासूम थी जितनी वो छोड़ कर गया था। उसके रुख मोड़ने पर कल्बुलैन की आंखों में नमी छाने लगी। इससे पहले कि वो किचन से निकलती, सिकंदर का बाजू उसकी कमर के गिर्द हाइल होता उसे अपने सीने से लगा गया। कल्बुलैन धक से रह गई। इस अचानक अफतार पर उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी। छोड़े मुझे, आप भी सबकी तरह बुरे हैं। ऐसे कोई करता है अपनी बीवी के साथ, और वो भी मेरे जैसी खूबसूरत और प्यारी मासूम बीवी? सिकंदर नाम रखने से आप कहीं के बादशाह नहीं बन जाते। छोड़े मुझे, अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। वो तड़प कर उसका हिसार तोड़ने की कोशिश करते हुए बिफरी थी। सिकंदर उसके झटपटाने पर मसरूर हुआ था। कल्बुलैन कुछ ना समझ आते उसके मजबूत बाजुओं पर अपने नाखून गाड़ गई। मेरी छोटी प्यारी मासूम सी बीवी, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी मुश्किलों से तो हाथ आई है, मेरा बस चले तो तुम्हारी आती जाती सांसों को भी खुद में कैद कर लूं। सिकंदर खुमार ज़दा आवाज़ में उसे देखते हुए बोला था। बात करते हुए सिकंदर के लब कल्बुल ऐन के कान की लो से मस हुए थे। कल्बुल ऐन धड़कते दिल के साथ उसके लबों की जुम्बिश पर साकत रह गई। सिकंदर, क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, ये किचन है, आपका बेडरूम नहीं। वो कुछ सटपटाते हुए सिकंदर को जगह का एहसास दिलाने लगी थी। दिल की धड़कनें जैसे रेस लगा रही थी कि सिकंदर का दिल उसके गुलाबी लबों पर अटक कर रह गया था। वो बेखुदी में अपने अंगूठे से उसके लब सहला रहा था। कल्बुलैन उसके हिसार में सांस तक रोक गई थी। लब कपकपाहट का शिकार थे। दिल बाहर आने को बेताब हुआ था। वो सिकंदर के हिसार में ऐसे खड़ी थी जैसे नाजुक सी परी किसी देव की कैद में, और वो देव किसी तरह भी उसे अपने शिकंजे से आज़ाद करने को तैयार न था। इस हार के मामले में सिकंदर शाहानी का कोई सानी नहीं था। वो खुद से जुड़े लोगों की कदर करना और उनसे मोहब्बत जताना बखूबी जानता था, और कल्बुलैन तो उसके लिए चलती सांसों की जमानत थी, जिसे वो किसी तौर खुद से बदजन नहीं करना चाहता था। सिकंदर शाहानी की मोहब्बत का हर पहलू मुनफरिद था। बहुत मुश्किलों के बाद उसने कल्बुलैन को हासिल किया था। कल्बुलैन की तड़प उसकी रगों में लहू बनकर दौड़ रही थी। कल्बुलैन को खुद तक महदूद करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अलमीर उसे झिझकते देख वॉशरूम में घुस गया। रात से अब तक वो याले को काफ़ी ज़्यादा तंग कर चुका था। अब अगर मज़ीद कुछ कहता तो उसका सर फाड़ने से भी गुरेज न करती। पर जो भी था, यह एहसास बेहद खूबसूरत था।
अलमीर फ्रेश होकर बाहर आया ये तो याले रूम से बाहर गायब थी। अलमीर सर नफी में हिला कर रह गया। याले मैडम उसकी नजरों से छुपती न जाने कहाँ गायब हुई थी। अलमीर वाइट कुर्ता शलवार में निखरा निखरा सा गेस्ट रूम से निकलकर अपने रूम की जानिब बढ़ा। उसे पक्का यकीन था याले रूम में ही मौजूद होगी। वो बालों में हाथ फेरते रूम का दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल हुआ। अलमीर ने पूरे रूम में नज़र दौड़ाई पर पूरा रूम खाली था। वॉशरूम से शॉवर चलने की आवाज़ आ रही थी। अलमीर शरारत से मुस्कुराता बेड पर ही बैठ गया क्योंकि मोहतरफा अपना ड्रेस ले जाना तो भूल ही गई थी। अब आएगा मज़ा। याले की यानी बहुत तड़पाया है ना इस मोमिन बंदे को, अब कुछ सज़ा तो आपको मिलनी ही चाहिए। उसकी गुलाबी सूट की चुनरी अपने चेहरे के करीब करते बोला था। अच्छे से याले के शौक होश ठिकाने लगाने का इरादा रखता था वो। अलमीर बेचैनी से उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। याले शावर ऑफ करती अपना ड्रेस लेने के लिए हाथ वॉल की तरफ बढ़ाया तो उसे याद आया कि वो ड्रेस तो बाहर ही भूल गई थी। उफ, ड्रेस तो मेरा बाहर ही रह गया। याले बाथरूम पहनती बाहर आई थी। गीले बालों से गिरती पानी की बूंदें उसकी गर्दन को नम कर रही थी। होठों पर फिसलते पानी के शबनमी कतरे बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। वो वाकई खूबसूरत थी, जान लेने की हद तक खूबसूरत थी। उसका पोर पोर फुर्सत से बनाया गया था। अलमीर जो उसकी चुनरी हाथ में लिए बैठा था, याले को वाइट बाथ गाउन में बाहर आते देख अपनी जगह मंजमद हो गया। वो बिना पलके झपकाए यकटुक याले को देख रहा था। याले को देखते ही उसकी निगाहों में खुमार उतरने लगा। दिल किया इस मंजर को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर ले, जिसकी ताबना की ताउम्र उसके साथ रहे। याले ने बहुत कम वक्त में अलमीर कियानी को अपनी गुर्बत के हिसार में कैद कर लिया था। वो चाहकर भी उस साहिरा के शहर से लम्हे भर भी दूर नहीं रह पा रहा था। अलमीर मेस्मराइज होता उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। याले जो अपने ही ख्यालों में गुम बाहर आई थी, अपने सामने अलमीर कियानी को देख उसके 14 तबक रोशन हुए थे। वो आंखें फाड़े अलमीर को देख रही थी। इतनी जल्दी ये जिन यहाँ भी हाजिर हो गया। याले ने आंखें मलते खुद को इस ख्वाब से निकालना चाहा था। वो अब भी बेयकीन सी थी। याले अलमीर कियानी, सुबह सुबह हार्ट अटैक करवाने का इरादा है क्या? काश तुम रात में भी इसी हुलिये में मुझे मिलती। यकीन करो जानम, तुम्हारे पोर पोर पर थकन सवार कर देता। अलमीर बड़ी दिलफरेबी से उसे सर तपाऊं देख कर बोला था। अंदाज गंभीर था। याले उसकी मायने खेजी बातों पर सर पटाक कर वापस वॉशरूम में जाने लगी, पर इससे पहले ही वो जालिम उसे अपने बाजुओं में कैद कर चुका था। अलमीर छोड़े मुझे, अब मैं आपकी किसी भी बात का यकीन नहीं करूंगी। आप दो नंबर आदमी हैं, कब से अपनी चीप हरकतों से मुझे परेशान किए जा रहे हैं। वो शदीद मज़ाहमत करती अपना हाथ छुड़ाते बोली थी। अलमीर की यानी तो किसी चिंगम की तरह इससे चिपक गया था। अलमीर अब भी उसे ढीठों की तरह मुस्कुराकर देख रहा था, जैसे उसकी बातों का कोई असर ही न हो। जानम, एक ही दिल है, कितनी बार लोगी यूं वक्फे वक्फे से जान निकालने की क्या तुक बनती है। करीब आओ, सांसों में सांस लो और दुनिया भुला दो। अलमीर उसके भीगे बाल गर्दन से हटाते हुए बोला था। याले का जुनून सर चढ़कर बोल रहा था।